Good morning, class. I am Miss Aina from Premchand Memorial Public School, and today we are going to start with the next chapter, that is chapter number 2, Nutrition and Animals. So, let's get started. We have already studied that the plants produce their own food by the help of photosynthesis. That's why their mode of nutrition is known as autotrophic nutrition. But since animals are unable to produce their own food, so they naturally depend on the plants for their food. And when they depend on the plants directly, then they are called as herbivores. And when they are dependent on the plants indirectly, then they are known as carnivores. But there are some animals also that depend on both plant and animals for their food, and such type of animals are known as omnivores. And another class of the animals that coexist or that live inside the body of the living being is known as parasites. So for intake of the food, there are various methods that are adopted by an animal via different body parts they have been built in with. For an example, mosquitoes on and leeches have sucking blood mouth parts so that they can easily suck. And the another one is elephants have trunks, squirrels and rabbit have sharp teeth, butterflies and moths have proboscis glands and proboscis organs so that they can actually suck the nectar out of the flowers. So let's deal with this topic in Hindi. तो जो न्यूट्रिशन होता है एनिमल में, वो दो तरीके से हम ले सकते हैं। जैसे कि एक ऑटोट्रॉपिक हुआ, दूसरा हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक वो होता है जिसमें प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की हेल्प से, वो किसी और पर डिपेंडेंट नहीं होते, तो इसलिए हम ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं। ठीक है, ऑटो मतलब खुद, यानी कि इसमें प्लांट खुद बना रहा है। ऑटोट्रॉपिक का ऑपोजिट होता है हेटरोट्रॉपिक, जिसमें जो है एनिमल बाहर से खाना खाता है, वो खुद खाना सिंथेसाइज नहीं कर सकता है। तो जो डायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड करते हैं उनको हम हर्बीवोर कहते हैं, और जो इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड करते हैं उनको हम कार्निवोर्स कहते हैं, और जो दोनों पे डिपेंड करते हैं उनको हम ओमनिवोर्स कहते हैं। जो एनिमल दूसरे एनिमल की बॉडी में रहता है उसको हम पैरासाइट बोलते हैं। ठीक है, अब पैरासाइट जो वो होते हैं जो हमारी बॉडी से खाना डिराइव करते हैं, खुद खाना नहीं बनाते और हमारी बॉडी के अंदर ही रहते हैं। तो अलग अलग तरह के पार्ट्स होते हैं, माउथ पार्ट्स होते हैं एनिमल्स के पास, जिसकी हेल्प से वो खाना खाते हैं। जैसे कि एलिफेंट के पास ट्रंक होता है, स्नेक डायरेक्टली स्वेलो करता है, मॉस्किटोज़ के पास सकिंग माउथ पार्ट्स होते हैं, बटरफ्लाई के पास प्रोबॉसिस होता है, स्पॉन्जिस के पास फिल्टरिंग एजेंट्स होते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज the processes involved in the nutrition. So there are 5 steps that are involved in the nutrition, that are ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. Ingestion is intake of the food, digestion is digestion or the breaking down of the food into small soluble particles so that it can be absorbed. Absorption is absorption of those small particles. Assimilation is the process of building complex substances using simple substances so that the energy can be gained out of them. And egestion is removal of the waste product or undigested food from the body. Now human digestive system starts from alimentary canal and ends at the anus, right? So alimentary canal is also known as digestive tract. It is a 9 to 10 meter long tube like structures, and the parts of the alimentary canal are mouth, esophagus, which is also known as food pipe, stomach, small intestine, large intestine and anus. So digestion is mainly done with the help of two parts, that is mechanical digestion or chemical digestion. Mechanical digestion is the physical breakdown of the food, that is with the help of teeth and tongue, that is chewing and churning of the food. In chemical digestion, chemical compounds called enzymes are involved that are secreted by the various organs of the body, and they are necessary for the chemical digestion because they help in the digestion of carbohydrates, fats and proteins into the simple forms. Now let's get started with the mouth. The other name for the mouth is the buccal cavity, and it is involved in the process of ingestion. So human beings take food with the help of the mouth, right? And this taking of food is termed as the ingestion. So mouth have various parts. Mouth also secretes saliva. It has salivary glands, and saliva is a digestive juice that is produced underneath or the back of the our tongue, right? Now it helps in the mastication is the breaking down of the food into simple particles with the help of teeth, and this and with the help of the saliva the mastication becomes more easier. So in adult human there are around 32 teeth. The front teeth are called incisors that are used to cut or take a bite of anything, right?
Just by the sides of the incisions there are canines, and canines are sharp pointed teeth. They are usually used for the tearing of the flesh, and that's why this is more developed in carnivorous animals. And at the back of the canines are the premolars and molars, which are used to grind the food, and they are mostly used by the herbivores. Now let's get all these topics in Hindi. तो न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है वो 5 हिस्सों में बांटा गया है: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमुलेशन और इजेशन। इंजेशन होता है खाने को खाना, यानी कि खाने को लेना अंदर। डाइजेशन होता है उसी खाने का टूटना, उसके सिंपलर फॉर्म्स में, यानी कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का सिंपलर फॉर्म में टूटना डाइजेस्टिव जूसेस की हेल्प से। एब्जॉर्प्शन होता है उसी टूटे हुए फूड का फिर से जो भी सॉल्युबल सब्सटेंस प्रेजेंट है उनका एब्जॉर्ब हो जाना बॉडी में, ठीक है, बॉडीज़ में और टिश्यूज़ में। एसिमुलेशन क्या होता है? उस एब्जॉर्ब्ड फूड से कुछ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनाना, जैसे कि एटीपी, जिसकी हेल्प से हम एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं और उस एनर्जी को हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इजेशन क्या होता है? जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी से बाहर फेंक देना। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो शुरू होता है ना, वो एलिमेंट्री कैनाल से शुरू होता है और एनएस पे ख़त्म होता है। एलिमेंट्री कैनाल को हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं और ये 9 से 10 मीटर लंबी होती है। तो क्या क्या पार्ट्स हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में? पहला है माउथ, दूसरा है ईसोफेगस, तीसरा स्टमक, चौथा स्मॉल इंटेस्टाइन, पांचवा लार्ज इंटेस्टाइन और सिक्स्थ वन इज़ एनएस। तो ईसोफेगस को हम फूड पाइट भी कहते हैं। डाइजेशन दो तरह से होता है, मैकेनिकल और केमिकल तरीके से। मैकेनिकल तरीके से होता है हमारे मुंह में, जिस तरह से हम दांतों की मदद से और टंग की मदद से खाने को चबाते हैं और मुंह में घुमाते हैं, तो इसको हम चर्निंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मैकेनिकल डाइजेशन। अब केमिकल डाइजेशन होता है कि बहुत सारे हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, वो ऑर्गन्स अलग अलग किस्म के एंजाइम्स निकालते हैं, जो एंजाइम्स फूड पे काम करके उनको तोड़ते हैं और एनर्जी रिलीज़ करवाते हैं। तो हमारे फूड में बेसिकली क्या क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन। तो इनको सिंपलर फॉर्म्स में तोड़ते हैं और एनर्जी रिलीज़ कराते हैं एंजाइम्स की हेल्प से, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं केमिकल डाइजेशन। तो अगर अब हम बात करें बकल कैविटी की, तो पहला जो पोर्शन है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में वो है बकल कैविटी। उसको हम माउथ भी कहते हैं। वो इंजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो आपको पता है सलाइवा क्या होता है? सलाइवा एक पानी की जैसा लिक्विड होता है जो कि हमारे मुंह में सिक्रीट होता है, और मुंह में भी कहाँ से सिक्रीट होता है? टंग के अंदर से और चीक्स के पास से, ठीक है। तो सलाइवा का फंक्शन क्या होता है? एक तो मैस्टिकेशन में हेल्प करता है, और इसकी केमिकल ओरिजिन भी है जो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। टीथ जो होते हैं वो मैस्टिकेशन में हेल्प करते हैं, यानी कि खाने को मसलने में मदद करते हैं, और सलाइवा भी हेल्प करती है, क्योंकि सूखे खाने को नहीं मसला जा सकता ना। और जो वेटनेस जो प्रोवाइड करती है वो सलाइवा प्रोवाइड करती है। तो इसी तरीके से सलाइवा टीथ दोनों काम आते हैं मैस्टिकेशन में। अब अगर हम दांतों की बात करें तो अडल्ट ह्यूमन में जो है वो 32 दांत होते हैं, 32 टीथ। तो आगे के जो 2 दांत होते हैं उनको हम इंसीजर कहते हैं, वो काटने के काम आते हैं। आप कोई भी ब्रेड या बटर कुछ भी जब आप खाते हो तो आप उसको जो पहला बाइट लेते हो वो आगे वाले दांतों से काट के लेते हो। उनके जिस साइड में होते हैं कैनाइंस। कैनाइंस है ना, शार्प और लंबे दांत होते हैं। उनका जो बेसिक फंक्शन होता है वो नॉनवेज को फाड़ना होता है, बेसिकली फाड़ना होता है। तो फाड़ने की ज़रूरत मीट को पड़ती है, मीट क्योंकि काटा नहीं जा सकता आसानी से। तो इसलिए कार्निवर्स में कैनाइंस ज़्यादा अच्छे से डेवलप्ड होते हैं। अब जो हमारे कैनाइंस के पीछे की तरफ है, जो लास्ट दांत होते हैं, वो होते हैं प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, जिनका काम होता है खाने को मसलना, मिक्स करना। जैसे ग्राइंड करती है ना, मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड होती हैं चीज़ें, तो उसी तरीके से पूरा बारीक कर देना वो काम होता है प्रीमोलर्स और मोलर्स का। और ये हर्बीवर्स के ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि प्लांट्स को खाते हुए ग्राइंडिंग की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और एनिमल को खाते हुए हमको टीयर करने की ज़रूरत होती है। तो इसलिए हर्बीवर्स प्लांट्स को खाते हैं, उनके प्रीमोलर्स और मोलर्स ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं, right? Now there's a topic given in your book, that is dental care. Now plaque. So what is plaque? When the acid in the mouth combines with the old food particles, and it actually creates a yellowish sticky substance over the teeth and over the gums, and over a period of time, if it is not cleaned properly, then it gives rise to a limey substance that is known as tartar, right? And this tartar keeps on depositing over the gums and teeth and gives rise to pyorrhea, which is actually a disease, like a dental disease. प्लाक क्या होता है कि जब हमारे मुंह में जो एसिड सिक्रीट होता है वो थोड़े थोड़े ओल्ड फूड पार्टिकल्स के साथ मिल के ना एक येलो कलर की स्टिकी डिपॉजिट प्रोड्यूस कर देता है। अब ये डिपॉजिट क्या करती है? एक तो अगर ज़्यादा डिपॉजिट हो जाए ये, तो इनेमल को इरोड कर देती है, यानी कि हमारी टीथ की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है उसको बेकार कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है, और वो जो हमारे टीथ में कैविटीज़ डेवलप हो जाती हैं। लेकिन अगर आप इसको साफ़ ना करो तो ये टार्टर की फॉर्म ले लेती है, यानी कि लाइम कलर का वो बहुत ही ज़्यादा चिपचिपा सा सब्सटेंस आपके गम्स और टीथ पे इकट्ठा हो जाता है। फिर इस डिसीज़ को हम कहते हैं पायरिया।
right? Now next part is how saliva is being used in the chemical digestion in the mouth. So the thing is that the saliva helps in contains an enzyme that is known as amylase that converts the carbohydrates into the simple sugar molecules, right? So this is the basic function of saliva. Apart from that, in mastication, saliva has an auxiliary function. The next part is tongue. So we know that tongue is required for taste. Why? Because tongue has small bud like structure, projecting structures that are known as taste buds, and which helps us to determine the different tastes, right? There's a diagram shown in your book on the areas which area of the tongue depicts which kind of taste, right? For an example, the tip actually helps us to distinguish the salty taste, and the lower back portion of the tongue helps us to identify the bitter taste, the side part as sour taste, and the middle part helps in distinguishing of sweet taste. Now, in addition to identifying the taste, tongue also helps us to talk. It moves the food around our mouth while we chew it, and it also helps in the mixing of the saliva with the food while chewing it, and helps us to swallow the chewed food, right? टंग एक है ना फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन होता है, यानी कि मांस से बना हुआ एक ऑर्गन होता है जो कि पीछे से अटैच होता है लेकिन आगे से फ्री होता है, राइट? बॉटम पार्ट उसका पीछे से मतलब बैक पोर्शन बॉटम में अटैच होता है और वेंट्रल पोर्शन जो होता है वो फ्री होता है मूवमेंट के लिए, ठीक है? टंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि टंग के ऊपर छोटी छोटी बड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिनको हम कहते हैं टेस्ट बड। अब उन टेस्ट बड्स का ये मदद मिलती है उनसे कि जो 4 तरह के फ्लेवर्स होते हैं, सॉल्टी, स्वीट, सॉर एंड बिटर, ये ज़रूरी होते हैं कि हमें टेस्ट करने के लिए, और ये सारे बर्ड्स जो होती हैं टेस्ट बर्ड्स, ये हेल्प करती है हमें ये 4 फ्लेवर्स को आइडेंटिफाई करने में। जैसे इस डायग्राम में आप देख भी सकते हो कि कौन सा टंग का पोर्शन कौन सा टेस्ट डिटरमाइन करता है। जैसे कि आपकी जो टंग की सबसे पीछे वाली चीज़, पीछे वाला जो एरिया है वो बिटर यानी कि कड़वा खाना रिकॉग्नाइज करता है। आगे वाला पोर्शन जो टिप होती है वो नमकीन खाना डिटरमाइन करता है। साइड में जो होते हैं वो खट्टा खाना डिटरमाइन करते हैं, और जो सेंटर वाला होता है उसको हम उसकी हेल्प से हम मीठा टेस्ट पता लगाते हैं। इसके अलावा टंग का क्या हेल्प होता है कि टंग जो है ना बात करने में इस्तेमाल होती है, हम सबको पता है। और टंग हमारे खाने को है ना मुंह में इधर उधर घुमाती है ताकि च्यूइंग अच्छे से हो जाए। और दूसरी बात, जो हमारी बॉडी में सलाइवा प्रोड्यूस होता है, जो हमारे माउथ में सलाइवा प्रोड्यूस होता है, उस सलाइवा को फूड के साथ मिक्स करने में वो बहुत ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करती है। और क्योंकि वो पल्पी सा मिक्सचर हो जाता है सलाइवा मिक्स होने के बाद, इसीलिए हम उसको च्यू कर पाते हैं और सटक पाते हैं, swallow कर पाते हैं। तो इसलिए टंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। The next part is esophagus. So esophagus मतलब just after the buccal cavity there is an small space called pharynx, and after that the esophagus starts. So tongue actually pushes the food to pharynx, and through pharynx it is pushed to the esophagus. Now it's advised that you should not talk while eating. Why so? Because esophagus, that is food pipe, and the windpipe trachea lies close to each other, and the windpipe is covered by the epiglottis at the time when we swallow the food. But in case we are talking and eating, so this might not give epiglottis enough time for its closure, and as a result the food can get into the windpipe and it results in choking, hiccups and coughing, right? Now the part of the food that enters the esophagus is known as bolus. Now bolus is nothing but it is the chewed food mixed with the saliva, and when it reaches the pharynx it is pushed down to the esophagus, and as a result it reaches the windpipe, and the esophagus connects the buccal cavity to the stomach. So it reaches the stomach by what type of movement? So the esophagus performs a movement that is known as peristalsis. So it is nothing but the simultaneous contraction and relaxation of the esophagus so that the food can be pushed downwards. Now let's deal with this topic in हिंदी। ईसोफेगस क्या होता है कि टंग से जो भी खाना जाता है ना वो सीधा फेरिंग्स में पुश कर दिया जाता है, और फेरिंग्स बहुत ही छोटा सा एरिया होता है, और फेरिंग्स से वो सीधा ईसोफेगस में पुश होता चला जाता है, ठीक है? तो अब क्या होता है, हमें बोलते हैं कि खाना खाते वक्त हमें बात नहीं करनी चाहिए। हमें बात क्यों नहीं करनी चाहिए? इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि फेरिंग्स एक कॉमन एरिया होता है। फेरिंग्स जो है वो विंड पाइप यानी कि ट्रैकिया भी फेरिंग्स में खुलता है और ईसोफेगस भी फेरिंग्स में खुलता है। तो इसका रिज़ल्ट क्या होता है कि कभी कभी जब हम बात कर रहे होते हैं और खाना भी खा रहे होते हैं तो वो फूड ईसोफेगस में ना जाके विंड पाइप में चला जाता है, जिसकी वजह से हमें खांसी, हिचकियाँ और चोकिंग भी हो जाती है, ठीक है? तो इस फूड को विंड पाइप में जाने से रोकती है एक स्ट्रक्चर, एक ढक्कन जैसा स्ट्रक्चर जिसको हम एपिग्लोटिस कहते हैं। तो जब हम दोनों काम साथ में करते हो तो एपिग्लोटिस को इतना टाइम नहीं मिलता कि वो तुरंत की तुरंत विंड पाइप को ढक सके ताकि फूड सीधा
किस में जाए, ईसोफेगस में जाए। तो फूड जाता है ईसोफेगस में। ईसोफेगस से भी तो वो नीचे जाना चाहिए, तो वो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। तो ईसोफेगस है ना, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन शो करता है, यानी कि एक तरह से सिकुड़ता रहता है। ठीक है, उसका उसका क्या फ़ायदा होता है? उसका फ़ायदा ये होता है कि फूड आसानी से नीचे पुश हो जाता है, और इस मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टालसिस। अब हम बात करते हैं स्टमक की। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टमक. It takes only 10 seconds for the food to pass through the mouth into the stomach, and stomach is a J-shaped, thick-walled pouch-like structure which is 12 inches long and 6 inches wide. And right now, the average adult stomach can hold about 2 liters of the food. Now, stomach has thick muscular walls that helps in the contraction of it, and the contraction result in the churning movement, that is the mixing of the food with the digestive juices. So stomach release three kinds of juices, that is pepsin, second one is mucus, third one is hydrochloric acid. So the pepsin helps in the digestion of the proteins, that is it breaks the proteins into simpler substances in the stomach itself. Second one is the hydrochloric acid, that is it's an acid, so it kills the unwanted bacteria that is being swallowed by us with the food. And since it's an acid, so it can also corrode the stomach, because stomach is just a muscle. So as a result, stomach also secretes mucus. Mucus is a slimy substance that actually protects the linings of the stomach, the inner linings of the stomach, from the action of the acid. Now the food, now that bolus, when the bolus is processed with the acid, then it is termed as chyme. So chyme is the thick liquid type of substance that too formed after the digestion of the proteins, and now this chyme gets transferred into the small intestine. Now the helping organs are liver, gallbladder and pancreas. Liver is the largest gland in our body that weighs around 3 kilograms in the adult. It is reddish brown in color. It is located in the upper right part of the abdomen. Why? Because in the left part stomach is located, and just in front of the stomach there is the location of the liver, that is the upper right portion, that too below the diaphragm. Right, now next is liver produces a yellow greenish colored liquid that is known as bile, and this bile, it just produces bile, it do not store bile. This bile is stored in the gallbladder and the duct or tube like structure, and this tube like structure is known as the bile duct. Now the bile is actually not an enzyme, but it is help in the neutralization of the acid that has already come from the stomach. And the other function of this bile is that it helps in the emulsification of fat, that is it breaks the fat molecule into small droplets, and later on these droplets are treated by the enzymes secreted by the pancreas for their digestion. Now pancreas is an organ that is located between the stomach and the first part of the small intestine. It secretes a number of enzymes that acts on different nutrients and change them into simpler forms. Next topic is small intestine. Small intestine is the longer portion of the digestive tract, or it's the longest portion of the digestive tract, that is around 6 meter long. So it is basically made up of thin fat layer, and it is coiled, so as a result it can reside inside the body, and it gives this more flexibility. The origin of the small intestine with the fat is the reason why the small intestine is very much flexible and mobile. Now the most of the digestion process takes place in the small intestine, because as the chyme enters in the small intestine, other juices also enter, and the juices of small intestine itself helps or completes the digestion of the complex components present in the food. It also receives enzymes from the associated organs such as liver and pancreas. Now before starting the physiology of the digestion and absorption in the small intestine, I would prefer to explain all three topics in Hindi. राइट, सो द फर्स्ट वन इज स्टमक. स्टमक क्या होता है कि ईसोफेगस खुलता है स्टमक में, राइट. तो स्टमक एक जे शेप का स्ट्रक्चर होता है जिसकी मोटी मोटी वॉल्स होती हैं और एक बैग जैसा होता है, और ये हमारी बॉडी के लेफ्ट साइड में लाई करता है. लगभग 12 इंच लंबा और 6 इंच चौड़ा होता है. ठीक है, और जो एक अडल्ट की जो स्टमक होती है ना, वो एवरेज पर्पस पे 2 लीटर फूड स्टोर कर सकती है. उससे ज़्यादा खाओगे तो वॉमिटिंग आ जाएगी. ठीक है, तो स्टमक के अंदर है ना कुछ थिक मसल्स होती हैं जो क्या हेल्प करती हैं, जो है ना मोशन करती रहती हैं इधर उधर. तो उसका फंक्शन क्या होता है, जैसे जैसे वो मूवमेंट करती है ना, थोड़ा बहुत इधर उधर होती हैं, तो वो चर्निंग करती हैं. चर्निंग एक मोशन होता है, जैसे ही वो मसल थोड़ा सा भी हिल रही है तो उसी के साथ आसपास का फूड और जूस भी हिल रहा है, तो वो चर्निंग मूवमेंट इसलिए शो करती है ताकि फूड डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिक्स हो जाए. स्टमक 3 तरह के जूस निकालती है, हीट करती है, तो उनमें से होता है पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड
एसिड और म्यूकस। तो पेप्सिन क्या होता है? पेप्सिन एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि हेल्प करता है प्रोटीन को तोड़ने में, प्रोटीन को सिंपल सब्सटेंसेस में, सिंपल फॉर्म्स में तोड़ने में हेल्प करता है। तो ये काम होता है पेप्सिन का। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम होता है? जब हम खाना खाते हैं तो पता नहीं कितने जर्म्स हम खाने के साथ अंदर खा लेते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? उन जर्म्स को मारता है। लेकिन ये एसिड है तो इससे तो मसल्स भी मरनी चाहिए। अगर तुम्हारे बॉडी के ऊपर एसिड डल जाए तो वो जल जाता है, तो मसल्स कैसे बची हुई हैं स्टमक की? तो वो इसलिए बची हुई हैं क्योंकि स्टमक की मसल्स एक नया सब्सटेंस सिक्रीट करती हैं, रिलीज़ करते हैं, जिसको हम कहते हैं म्यूकस। म्यूकस क्या करता है? एक लेयर बना लेता है स्टमक के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है? चिपचिपी सी लेयर बन जाती है और एसिड एक्ट नहीं कर पाता है मसल्स के ऊपर। अब अगर हम बात करें लीवर, गॉल ब्लैडर और पेनक्रियाज की, तो लीवर क्या होता है? सबसे बड़ा ग्लैंड होता है और इसका 3 किलोग्राम वज़न होता है, यानी कि आपकी बॉडी का 3 किलो वज़न तो लीवर में ही हो जाता है। लीवर एक रेडिश ब्राउन कलर का पार्ट होता है, हमारी बॉडी का ऑर्गन होता है, ठीक है। और ये है ना अपर एब्डोमेन में लाई करता है राइट साइड में, यानी कि स्टमक के जस्ट सामने कौन है? लीवर, ठीक है। तो लीवर जो होता है वो प्रोड्यूस करता है बाइल। बाइल क्या होता है? एक है ना येलो ग्रीन कलर का लिक्विड होता है। ये जो है एंजाइम नहीं होता, ये बस एक जूस होता है। और ये लीवर सिर्फ जूस सिक्रीट करता है, स्टोर नहीं करता। स्टोरेज के लिए दे देता है इसको गॉल ब्लैडर को। मैंने सिक्रीट कर दिया, अब तुम स्टोर करो। गॉल ब्लैडर स्टोर करता है। और जो डक्ट या ट्यूब की वजह से लीवर और गॉल ब्लैडर कनेक्टेड होते हैं उसको हम कहते हैं बाइल डक्ट। बाइल का काम क्या होता है कि एक तो हमने अभी देखा था ना कि जो स्टमक से जो फूड आ रहा है उसको हम काइम कह रहे थे, क्यों? क्योंकि उस फूड के अंदर एसिड मिला हुआ था। तो अब उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक बेस चाहिए। तो जो गॉल ब्लैडर होता है वो एल्कलाइन, जो बाइल जूस होता है वो एल्कलाइन मीडियम प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एक ये काम होता है। दूसरा काम होता है कि जो फैट्स होते हैं ना उनको वो छोटे छोटे ड्रॉप्स में तोड़ देता है, इसको हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। फिर क्या करता है कि पेनक्रियाज के जो एंजाइम्स होते हैं उन छोटे छोटे ड्रॉप्स पे काम करके उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं या फिर वो डाइजेस्ट कर देते हैं फैट को, ठीक है। अगर अब हम पेनक्रियाज की बात करें तो पेनक्रियाज जो होता है वो स्टमक के फर्स्ट पार्ट के बीच में लाई करता है, ठीक है। स्टमक और इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट के बीच में लाई करता है। एक ये पत्ती जैसा स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर है ना बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। बहुत सारे एंजाइम सिक्रीट करता है जो कि खाने पर एक्ट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स पे एक्ट करते हैं और उनको सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे लॉन्ग पार्ट होता है हमारी एलिमेंट्री कैनाल का, जो कि 6 मीटर लंबा होता है, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन है ना कॉइल्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि अब आप खुद देखो, आपने एक स्प्रिंग देखी होगी, अगर आप उस स्प्रिंग को खोल दो तो कितना लंबा वायर बन जाता है। तो ये पूरा का पूरा वायर अगर हमें छोटे से डब्बे में फिट करना है तो हमें उसको कॉइल करना पड़ेगा। तो इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन कॉइल्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन है ना यूजुअली थिन फैट लेयर का बना होता है। इससे क्या होता है कि उसको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि मतलब ये ऐसे इधर उधर रह सकता है, एकदम रिजिड नहीं होता कि ये हिल ही नहीं रहा है, ठीक है। अब क्या होता है, ज़्यादातर डाइजेशन प्रोसेसेस जो होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आके सारे एंजाइम्स ऊपर से आ जाते हैं, सारा फूड आ जाता है। कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन के अपने एंजाइम्स होते हैं, तो ये सब मिलके फूड को कम्प्लीटली डाइजेस्ट कर देते हैं उसके छोटे छोटे कंपोनेंट्स में, ठीक है। और ये लीवर, पेनक्रियाज, इन सब से ये सारे एंजाइम्स इसमें आके रुक जाते हैं, मतलब आकर इनका सारा काम यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या एंजाइम्स आते हैं। So the pancreatic juice contains enzymes, that is pancreatic amylase, lipase and trypsin. Amylase converts simple starch into sugar, that is already being done in the mouth. Lipase converts fats into the fatty acids and cholesterol. Trypsin acts on the proteins which were not digested in the stomach. Now the intestinal juice is released from the stomach intestine, contains another protein that is known as irisin. This enzyme completes the digestion of proteins into amino acids. The intestinal juice also contains self sugar splitting enzymes, namely maltase, lactase and sucrase. So maltase converts maltose into glucose, lactase converts lactose into glucose and galactose, and sucrase converts sucrose into glucose and fructose. So thus the digestion of the food is almost completed here. Now here comes chance of the absorption. Now without absorption there is no meaning of the digestion. So the small intestine is not sufficient for the entire absorption of the nutrients that our body needs. That's why the inner walls of the small intestines have many fold-like structures that are known as villi. So there are millions of microscopic finger-like projections that are called as villi, and on the villi there are also some sort of foldings that are known as microvilli, and it contains very much small blood vessels. So the blood vessels transport the absorbed nutrients, and as a result the absorbed substance are carried to different organs where they get utilized
to build proteins and other complexes, and this whole process is known as एसिमिलेशन। तो जो जूस पेनक्रियास से आता है उसके अंदर हमारे पास कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं? पेनक्रियाटिक अमाइलेज, पेनक्रियाटिक लाइपेज और ट्रिप्सिन। अब पेनक्रियाटिक अमाइलेज जो क्या करता है, वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। देखो सलाइवरी अमाइलेज भी तो हमारे माउथ में यही काम कर रहा था। अब पेनक्रियाटिक अमाइलेज क्या करता है, बचे हुए स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। अब जो पेनक्रियाटिक लाइपेज है वो क्या करता है, वो फैट्स को किस में कन्वर्ट करता है, फैटी एसिड्स और ग्लिसरीन या फिर ग्लिसरॉल में। तो हमने पीछे पढ़ा था ना कि जो गॉल ब्लैडर के अंदर जो बाइल जूस स्टोर होता है, वो बाइल जूस क्या करता है, फैट्स को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ता है, फिर उन ड्रॉपलेट्स पे पेनक्रियाटिक जूसेस के एंजाइम एक्ट करते हैं डाइजेशन के लिए। तो वो कौन सा एंजाइम होता है, वो होता है पेनक्रियाटिक लाइपेज। अब जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, स्टमक के अंदर कुछ प्रोटीन रह जाता है जो कि डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तो वो डाइजेशन करता है ट्रिप्सिन एंजाइम। अब हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन भी एक किस्म का जूस सिक्रीट करती है जिसको हम कहते हैं इरिप्सिन। इरिप्सिन क्या करता है, जो बचा हुआ जितना भी पोर्शन है डाइजेशन का वो सब कंप्लीट कर देता है। जैसे इरिप्सिन के अंदर है ना शुगर को तोड़ने वाले एंजाइम्स भी होते हैं जिनका नाम है माल्टेज, लैक्टेज एंड सुक्रेज। माल्टेज क्या करता है, माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। माल्टोज एक किस्म की कॉम्प्लेक्स शुगर है, इसको वो सिंपल शुगर ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। लैक्टेज क्या करता है, लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट करता है। और सुक्रेज क्या करता है, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है। तो इसी के साथ हमारा जो जितना भी डाइजेशन था, सारी चीज़ों का डाइजेशन कंप्लीट हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब क्या फ़ायदा अगर ये डाइजेस्टिव फूड एब्जॉर्ब करने वाला ही कोई ना हो, तो एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन का जितना सरफेस होता है उतना काफ़ी नहीं होता है सारा खाना एब्जॉर्ब करके हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाने के लिए। तो इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन की जो अंदर वाली वॉल की सरफेस होती है ना, उसमें फोल्डिंग्स होते हैं, उंगली जैसे प्रोजेक्शंस होते हैं। तो वो उंगली जैसे प्रोजेक्शंस को हम कहते हैं विलाय। विलाय का काम होता है कि वो सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। और दूसरा विलाई के, अब इन विलाई के ऊपर भी ना छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनका भी काम होता है सरफेस एरिया बढ़ाने का, उनको हम कहते हैं माइक्रोविलाई। और उन माइक्रोविलाई तक है ना छोटे छोटे ब्लड वेसल्स पहुंचते हैं। तो क्या होता है, खाना माइक्रोविलाई से ब्लड वेसल्स में जाता है और जिस जिस ऑर्गन में ज़रूरत थी उधर चला जाता है। तो खाना माइक्रोविलाई तक पहुँचना, ब्लड वेसल तक पहुँचना हो गया यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ख़त्म। अब वो जो एब्जॉर्ब्ड खाना है वो अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुँचता है और वहाँ पे वो काम आता है। कुछ खाने का प्रोटीन बन जाता है, कुछ खाने का एनर्जी बन जाता है, कुछ खाने का कुछ और बन जाता है जो ज़रूरत होती है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एसिमिलेशन, राइट। Now large intestine is basically utilized for the absorption of remaining salts and water, and from the small intestine the food moves up the large intestine to the colon, and from its journey from a small intestine to the colon, almost all the remaining salts and water have been absorbed, and now there is a thick, compact, dense mass of feces that is stored into the rectum and eventually gets out of the body through anus. So this process is known as egestion. So with digestion, almost all the digestive processes have come to an end. Now there is a part of the large intestine that is known as appendix. It is a very tiny vestigial organ. That is, vestigial means that is of no use to us, but in plants it was of use as they need to digest cellulose. But our diet is not solely based on the cellulose. That's why it's not useful in our body, and it is known as appendix. And when it gets infected, it creates a lot of pain and irritation. That's why in those cases it needed to be removed from the body for a healthy lifestyle. Let's deal with this topic in Hindi. लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आती है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है कि जो बचा कुचा सॉल्ट और वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर लें खाने में से। पूरा खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो गया, एब्जॉर्ब हो गया और एसिमिलेशन के लिए अलग अलग जगहों पे पहुंच गया। फिर जो बचा हुआ खाना है वो आता है लार्ज इंटेस्टाइन में, वहाँ से उसमें से सॉल्ट और वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है। खाना मूव करता है कोलोन की तरफ, इतने में उससे सारा सॉल्ट और वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिर कोलोन में आके वो इकट्ठा हो जाता है, डेंस मास बन जाता है, और फिर वो कोलोन से रेक्टम में स्टोर हो जाता है। रेक्टम से फिर वो एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इजेशन, ठीक है। इसके साथ हमारे सारे डाइजेस्टिव प्रोसेसेस ख़त्म हो गए। अब है ना, लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं अपेंडिक्स। हमारी बॉडी में वो किसी काम का नहीं है क्योंकि वो सेल्यूलोज डाइजेशन में हेल्प करता है। अब हमारी डाइट सोलली पूरी तरह से सेल्यूलोज पे तो डिपेंड करती नहीं है, हम बहुत सारे तरह के खाने खाते हैं, तो वो हर्बीवोर में इलोंगेटेड होता है और काम आता है वहाँ पे। हमारे बॉडी में अपेंडिक्स का कोई काम नहीं। तो अगर उसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इरिटेशन होती है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, उस अपेंडिक्स को काट के बाहर निकाल देते हैं, और ऐसा करना ज़रूरी है एक हेल्दी लिविंग के लिए।
Now there are some ailments given in your book that are related to the digestive tract. That is, first one is heartburn. So what is heartburn? Heartburn is that we know that in our stomach already acid has been released, and when this half or partly digested food comes back to the esophagus, that is to the last part of the esophagus, that is known as gullet, right, to the first part, to the last part of the esophagus, that is known as gullet. So what happens, gullet is unable to feel the acid or to retain the acid, and as a result it gets irritated, and an irritation is caused due to the acid. This whole concept is known as heartburn. Next one is belching. So what is belching? When you drink carbonated drinks, or when you drink spirit, coke, pepsi, etc., so what you do, you actually inhale a lot of air along with the food you eat or along with the drinks you are taking. As a result, the body tries to push that air out of you, and there is a sudden rush of the large quantity of the air either from your mouth or from your nose. This process is known as belching. But 3 to 4 burps after a meal is considered healthy, but more than that would cause a medical condition known as ulcer. Third one is vomiting. So what is vomiting? The forceful expulsion of the contents. Like, the stomach has a capacity of 2 liter, and if you are feeding more and more, then it would result in the vomiting. That is the forceful expulsion of the contents of the stomach from the mouth. Now last one is diarrhea. Diarrhea is a condition in which you frequently visit the washroom, or there is a frequent liquid bowel movement per day, more than 3. Right now, what happens? It is a symptom of gastrointestinal infection, and this infection can be caused by bacteria, virus, any parasite spreading out in the environment, or through the contaminated food, unclean water, and lack of hygiene. All these factors lead to the gastrointestinal infection, and as a result, gastrointestinal infection develops a symptom known as diarrhea. So in young children it is fatal, because most of all the amount of the liquid is being drawn out of the body, and as a result, due to the dehydration and vomiting and the loose motion, the conditions occur that actually leads to death of various newborn babies. Diarrhea should never be neglected, and ORS is a mixture of clean water, salt, and sugar that is given to a person suffering from the diarrhea. Right now, the what are the measures that can be used to prevent the diarrhea? That is, access to safe drinking water, improved sanitation facilities, personal and food hygiene, and education about how infections spread. Now, how digestion takes place in grass eating animals. So the stomach of the grass eating animals is four chambered. So what they do, they just quickly feed on the grass, they chew it slightly, and they swallow it. Right, so they swallow it, and it gets stored in a part known as rumen. So here partial digestion takes place. Now what happened after this partial digestion? The food is known as cud. Now when they are sitting idle, or when they are sitting free, the food from the cud comes into their mouth in small quantities, and this process is known as chewing the cud, as the animal chews the food again. Now this food reaches to the rumen, the second part of the stomach. Now, rumen contains billions of bacteria and other microbes that break down the cellulose. The cellulose returns to a large sac-like structure called cecum, where cellulose gets digested completely with the help of the symbiotic bacteria to form sugar and fatty acid. So with this, the digestion in the animals gets completed, but in humans the digestion of cellulose cannot take place. Why? Because we lack the certain bacteria that helps in the breakdown of the cellulose. Now let's deal with this topic in Hindi first, then we'll move on to the digestion in the amoeba. तो कुछ डिसीज़ें हैं, कुछ तकलीफ़ें हैं जो कि डाइजेशन से रिलेटेड हैं, जैसे कि उनमें पहला है हर्टबर्न. हर्टबर्न क्या होता है कि आपके स्टमक में है ना, एसिड के साथ खाना मिक्स हो गया, थोड़ा बहुत डाइजेस्ट हो गया, अब वो खाना है ना वापस ईसोफेगस के एंड पे आ जाता है, यानी कि स्टमक के ऊपर वाले पोर्शन में आ जाता है. तो वो एंड को तो एसिड झेलने की आदत नहीं है, म्यूकस लाइनिंग तो सिर्फ स्टमक में है, तो उसकी वजह से क्या होती है, वो एरिया ना इरीटेटेड हो जाता है और तुमको जलन होनी शुरू हो जाती है. तो इसी चीज़ को हम कहते हैं हर्टबर्न. तो बहुत ज़्यादा जलन होती है और बहुत ही बेकार सी कंडीशन होती है ये हर्टबर्न. अब उसके बाद दूसरी कंडीशन है बेल्चिंग. बेल्चिंग में क्या होता है कि आपने स्प्राइट पी, पेप्सी पी, कोक पी, कुछ ऐसा पिया जिसके साथ है ना बहुत सारी एयर आपने अपने अंदर ले ली मुंह के थ्रू. तो अब क्या करती है बॉडी, फटाफट से इस एयर को है ना बाहर निकालने की कोशिश करती है, और वो बहुत सारी एयर को एक साथ बाहर फेंक देती है. और इस चक्कर में क्या होता है कि बहुत ही स्पीड से आपकी नाक से, मुंह से बहुत ज़्यादा एयर बाहर आती है. तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं बेल्चिंग. तो खाना खाने के बाद अगर एक दो डकारें आती हैं तो वो नॉर्मल है, लेकिन अगर एक दो बर्ब से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि आपके पेट में, पेट में नहीं, आपके इंटेस्टाइन में कहीं अल्सर है. ठीक है. नेक्स्ट इज़ वॉमिटिंग. वॉमिटिंग आपको पता है 2 लीटर की कैपेसिटी है, सोचा बहुत ज़्यादा खा लूँ, अब ज़्यादा खाने की वजह से आ गई वॉमिटिंग, उल्टी. तो जितना भी स्टमक का कंटेंट्स था वो मुंह के
ज़रिए बाहर आ रहा है, इसको हम कहते हैं वॉमिटिंग। फोर्थ है लास्ट वन, डायरिया। तो डायरिया में क्या होता है ना कि 3 या 4 बार से ज़्यादा हम लोग जाते हैं वॉशरूम बॉल मूवमेंट के लिए, और जो बॉल होता है ना वो लिक्विड और लूज़ होता है, ठीक है। तो बॉल मूवमेंट मतलब होता है फीकल डिस्चार्ज, यानी कि पॉटी करना। तो अब क्या होता है कि 3-4 बार से ज़्यादा जा रहे हैं और लिक्विड मोशन हो रहा है, तो उसकी वजह से हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। डायरिया इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल यानी कि हमारे पेट या फिर हमारे इंटेस्टाइन में कहीं ना कहीं कुछ इन्फेक्शन होता है, जिसका सिम्टम होता है डायरिया, ठीक है। डायरिया एक डिसीज़ नहीं है, डायरिया एक डिसीज़ का सिम्टम है, और वो डिसीज़ है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। अब ये इन्फेक्शन किसी भी चीज़ की वजह से हो सकता है, बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, या फिर गंदे खाने की वजह से। आप गंदगी में रह रहे हो, आप ठीक से पानी नहीं पी रहे हो, मतलब साफ़ पानी नहीं पी रहे हो, गंदा खाना खा रहे हो, खुद की सफाई नहीं कर रहे हो, तो इन सब चीज़ों की वजह से डायरिया हो जाता है। तो डायरिया क्या होता है, बड़े लोगों में फिर भी टॉलरेट हो जाता है, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनमें इतना ज़्यादा वाटरी मूवमेंट होता है ना, इतना ज़्यादा वाटर बाहर आ जाता है बॉडी से कि वो डिहाइड्रेट हो जाते हैं और इवेंचुअली उनकी डेथ हो जाती है। तो डायरिया को इसलिए हल्के में नहीं लेना चाहिए, और डायरिया जो जिसको भी हो उसको हमें ORS का घोल पिलाना चाहिए। और ORS के घोल में क्या क्या होता है, क्लीन वाटर, सॉल्ट और शुगर, इन सब चीज़ों का एक क्वांटिटी में मिक्सचर होता है। ऐसे नहीं कुछ भी डाल दिया, उनकी एक नापी हुई क्वांटिटी होती है कि 2 ग्राम ये, 3 ग्राम ये, 4 ग्राम, एक डेफिनेट प्रपोर्शन में फिर इस मिक्सचर को तैयार किया जाता है, और जो जिस पर्सन को डायरिया है उसको दिया जाता है। और डायरिया को हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं, कैसे कि साफ़ पानी पिएं और इम्प्रूव सैनिटेशन अच्छी जगह पे, मतलब ऐसे नहीं कि कहीं भी जाके आप डिफिकेट कर रहे हो। दूसरा है कि पर्सनल हाइजीन का ध्यान करें, नहाया करो इसलिए। अब चौथा है कि एजुकेशन अबाउट हाउ इन्फेक्शन स्प्रेड, और हमें पता होना चाहिए कि इन्फेक्शन कैसे फैल रहा है, क्यों फैल रहा है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि एनिमल्स में जो हर्बीवर्स होते हैं, जो घास खाते हैं एनिमल, उनमें किस तरह से डाइजेशन होता है, तो उनकी जो स्टमक होती है ना वो थोड़ी खास होती है। वो 4 पार्ट की बनी होती है, उनकी स्टमक में है ना 4 बॉक्सेस टाइप के होते हैं। तो अब क्या होता है कि वो तुमने देखा होगा कि फटाफट फटाफट वो खा लेते हैं, 2-4 बार चबाया और सटक लिया, 2-4 बार चबाया सटक लिया, और फिर जब वो फ्री टाइम में बैठे रहते हैं तब मुंह चलाते रहते हैं, यानी कि वो च्यू करते रहते हैं। क्यों ऐसा? इसलिए होता है कि उन्होंने खाना तुरंत खाया, ग्रास 1-2 बार चबाया और उन्होंने सटक लिया, स्वेलो कर लिया, क्योंकि उन्हें फीडिंग टाइम रिड्यूस करना होता है। अब वो सारे दिन ग्रेजिंग फील्ड्स में थोड़ी बैठे रहेंगे, तो फिर वो क्या करते हैं, वो सारा खाना है ना रूमेन में जाके स्टोर हो जाता है, जो कि पहला पार्ट होता है। अब रूमेन में उसका आधा सा डाइजेशन हो जाता है। अब उस डाइजेस्टेड फूड को कहते हैं हम कड। अब जब वो खाली बैठे रहते हैं तो वो डाइजेस्टेड फूड या कड है ना धीरे धीरे करके उनके मुंह में वापस आता है, ठीक है। स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज़ में वो कड वापस उनके माउथ में आता है, और फिर से वो चूइंग स्टार्ट कर देते हैं, चबाना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं चूइंग ऑफ कड। अब इसके बाद है ना जो चूइंग ऑफ कड यानी कि ये चबाया हुआ जो फूड है ये जाता है रूमेन में। तो जिन एनिमल्स के पास रूमेन चेम्बर होता है उनको हम कहते हैं रूमिनेंट्स, और ह्यूमन, कैटल, शीप, गोट सबके पास होता है। अब वहाँ पे उसके है ना डाइजेशन होता है बैक्टीरियाज और माइक्रोब्स की वजह से, क्योंकि रूमेन के अंदर थोड़े बहुत बैक्टीरियाज और माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट्स होते हैं। अब उसके बाद फिर रूमेन से वो है ना सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक है ना बहुत सारी लेयर्स से पास होता है, वहाँ भी उसका हल्का फुल्का डाइजेशन होता है। फिर ये एक लास्ट में जाके एक है ना बैग लाइक स्ट्रक्चर में आता है, उस बैग को हम कहते हैं सीकम। अब सीकम में है ना बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज, जो कि हेल्प करते हैं खाने को डाइजेस्ट करने में, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में। फिर वो क्या होता है, सेल्यूलोज से शुगर और फैटी एसिड बना देते हैं। तो फाइनली सीकम में जाके डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग घास नहीं खाते हैं, ठीक है। हमारा क्यों नहीं खाते हैं? खाने को तो हम भी खा सकते हैं, इसलिए नहीं खाते क्योंकि हमारी बॉडी में घास को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम नहीं होता है, क्योंकि वो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं र्यूमन में, ठीक है। और र्यूमन हमारे पास होता नहीं है, तो हम घास नहीं खा सकते। So we cannot digest grass because we lack the bacteria that helps in the breakdown of the cellulose. Now let's move on to the last topic, that is digestion in amoeba. Amoeba is a very simple microorganism, and that too unicellular. That means it is composed of one cell only. The functions of the amoeba is controlled by the dense nucleus, and apart from that it also has a cell membrane, and thus it has a very simple body of cell membrane and nucleus. Some vacuoles are also seen because they are required. Now the next part is amoeba feeds on the microorganisms that are found in its surrounding. What happens as it sees the microorganism, it
projects the finger-like projections called pseudopodia around the food particle to engulf it, and as a result the food vacuole is formed, and the digestive juices act on the engulfed food in the food vacuole and breaks down into the simpler substances that are absorbed by the amoeba. Now the undigested food or unwanted substances are also thrown out of the body with the help of vacuole only. So in the next page, or in this page only, you can see that the food is there, and with the help of finger like projections it is engulfing the food, it is digesting the food, and it is throwing out the waste outside its body. तो अगर हम अमीबा की बात करें तो अमीबा है ना सबसे ही छोटा, जो कि माइक्रोस्कोप से देखा जाए उस किस्म का ऑर्गेनिज्म होता है, और ये यूनिसेलुलर होता है, इसकी एक ही सेल होती है। और उस एक सेल में क्या क्या होता है, एक सेल मेम्ब्रेन होती है, कुछ वैक्यूल्स होते हैं, वैक्यूल्स छोटे छोटे बबल जैसे गोले जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, और एक डेंस न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस का काम है इसके सारे फंक्शंस को रेगुलेट करना। अमीबा खाता है बाकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। तो जैसे ही ये बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखता है कि उनके आसपास है ना, अपनी बॉडी को एक्सटेंड करके फिंगर जैसे प्रोजेक्शन बना देता है, फिंगर जैसे स्ट्रक्चर्स बना देता है, और उसको पकड़ लेता है जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और पकड़ने के बाद उसको अपनी बॉडी के अंदर ले आता है वैक्यूल फॉर्म में। अब उस वैक्यूल में डाइजेस्टिव एंजाइम्स एक्ट करते हैं, उसका डाइजेशन हो जाता है। अब जो वेस्ट बचता है वो वैक्यूल के फॉर्म में ही सूडोपोडिया की हेल्प से बॉडी से बाहर फेंक दिया जाता है। तो इस तरह से अमीबा में डाइजेशन होता है। सो विद दिस वी हैव completed your chapter, and your half yearly examinations are approaching. Do read the textbooks carefully and solve the assignment in good handwriting so that I can read it, right? Now next part is textbook reading is must, because in your exams you would require textbooks. Read it. If you have any doubt, ask me. Till then, good luck. Take care.